Praise Lord. Hallelujah. 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 Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Hallelujah. खुदा की तारीफ हो, उसके नाम को जलाल देते हैं, उसको ऑनर देते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं. Praise God. Hallelujah. आइए खुदावंद को ऑनर दें, उसके नाम को जलाल दें, उसकी बुजुर्गी करें, क्योंकि वो इस लायक है. Praise Lord. Hallelujah. अगर आज आप इस वक्त हमारे इस पेज पर मौजूद हैं तो आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस टाइम इस पेज को दूसरे लोगों के लिए शेयर करें, अपनी वॉल्स के ऊपर वॉच पार्टी के अंदर आएं और ताकि बाकी लोग भी इस आज के मैसेज से मुस्तफीद हो सके, कलाम की बरकत हासिल कर सके. अगर आप चाहते हैं कि लोग बरकत हासिल करें तो मेहरबानी करके इस पेज को शेयर करना शुरू करें अपनी वॉल पे, ताकि लोग इससे बरकत हासिल कर सकें. मैं शुक्रगुजार हूँ होशना बैंड के लिए, जिनके गीत को हम इस वक्त चला रहे हैं यहाँ पर. खुदावंद की तारीफ हो. हालेलुया. हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत बैंड के लिए, होशना बैंड के लिए, जिन्होंने नहायत खूबसूरती के साथ इस गीत को, ज़बूर को दुनिया के लिए गाया. और आज हमने आपके इस प्रोग्राम में दानियल नबी की किताब के तफसीरी मुतालिया कि 16वीं एपिसोड के अंदर 16वीं किस्त के अंदर हमने इसको आज आप सबों की रूहानी तस्कीन के लिए इस गीत को
چلایا. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ہوشنا بینڈ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، اور آج جو ڈیٹ ہے 8 تاریخ ہے، 8 مئی کی آج ڈیٹ ہے، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مئی کے مہینے کا آہستہ آہستہ ہم جو ہے اس کے ہفتے کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں، اور ہم ہر روز ایک نیا میسج آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں میں. آج دانیل کی کتاب کا تفسیری مطالعہ ہم دوبارہ شروع کریں گے. اگر آج ابھی تک آپ نے اس پیج کو لائک نہیں کیا تو اس پیج کو لائک کریں. اگر آج تک آپ نے اس پیج کو فالو نہیں کیا تو رائٹ وے آپ اس کو فالو کرنا شروع کریں، تاکہ بر وقت آپ کو اچھے میسیجز جو ہیں یہاں پر مل سکیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس کاپی پینسل نہیں ہے تو کاپی پینسل رکھ لیں، تاکہ آپ نوٹس بناتے چلے جائیں. کئی مرتبہ ہم انحصار کرتے ہیں اس بات پر کہ خادم بول رہے ہیں، ہمارے پاس لنک موجود ہے، ہم اس کو حاصل کر لیں گے. تھینک یو. آپ کی میموری پاور اگر اتنی ہے تو اس کے لیے خداوند کا شکر ہے، لیکن اگر آپ اس کے نوٹس تیار کر لیں تو اس کے لیے یہ تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، بعد میں آسانی آپ کے لیے پیدا ہوگی. سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. جتنے لوگ اس وقت جوائن کر چکے ہیں، میں پھر ایک مرتبہ آپ سے اپیل کروں گا، آپ کس ملک سے ہیں، آپ کس سٹی سے ہیں، آپ کس خطے سے ہیں، مہربانی کر کے یہاں پر اپنے کامنٹس باکس کے اندر جہاں پر یہ کامنٹ چل رہے ہیں وہاں پر آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں، آپ اپنا لکھ سکتے ہیں کہ آپ کس ملک سے ہیں، کس جگہ سے ہیں، سو تاکہ ہم آپ کے لیے جو ہے وہ سہولت مہیا ہو سکے، ہمارے لیے بھی انکریجمنٹ ہو سکے، اور ہم خدا کے کلام کو بہتر طور پر ہم جان سکیں گے. آئیے دانیل کی کتاب کا مطالعہ کریں گے. دانیل کی کتاب میں سے آج جو ہم سبوں کے لیے نہایت ہی حساس مضمون ہے آج کا ہمارے لیے، اور اس مضمون کے اوپر پوری دنیا کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے. پوری دنیا اس لپیٹ کے اندر ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس طرح کی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. مذاہب کے اندر مسکنسیپشن اس کی بابت پائی جاتی ہے، قوموں کے اندر مسکنسیپشن اس کی بابت پائی جاتی ہے، قبیلوں کے اندر اس کی بابت مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں اس کے اوپر مختلف آراء رکھتے ہیں، مختلف خیالات رکھتے ہیں، مختلف مائنڈ سیٹ ہے، مختلف اسکول آف تھاٹ ہے، اور یہ کسی نہ کسی طور پر بالواسطہ اور بلا واسطہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہماری پرسنل لائف کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کے اثرات ہماری زندگیوں کے اوپر بہت زیادہ ہے. ہماری روزمرہ زندگی کے اوپر اس مضمون کے اثرات بہت زیادہ ہیں. ہم اگر ڈیلی نیوز پیپر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی مضمون آپ کو ملے گا. آپ ویکلی رسالہ پڑھیں، اس کے اندر بھی آپ کو یہی مضمون ملے گا. آپ ٹیلی ویژن کے اوپر جائیں تو ٹی وی کے اوپر بھی، مارننگ شوز کے اوپر بھی آپ کو یہی مضمون ملے گا. آخر کیوں اس کو اتنا زیادہ تذکرہ اس کا کیا جاتا ہے؟ حال کے اندر، کرنٹ سچویشن کے اندر اس مضمون کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جو مضمون ہے وہ ہے نجومی، علم نجوم، یا میں یوں کہوں گا فلکیات کا علم، ستاروں کا علم، سیاروں کا علم. کیا یہ علم جو ہے حقیقت کے اندر ہے کیا، اور اس کا میری لائف کے اندر تعلق کیا ہے، اس کا مذاہب کے اوپر اثرات کیا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ریلیجن کے اوپر کیا ہے؟ آج ان ساری باتوں پر سے آج ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا اور خدا کے کلام کو سیکھیے گا. دانیل نبی کی کتاب کا مطالعہ کریں گے. دانیل نبی کی کتاب پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت ہماری آج کی مرکزی آیت ہوگی. لیکن اس سے پہلے 20ویں آیت کا مطالعہ کریں. ہم اس کا سیاق و سباق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جو ناظرین نئے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس مضمون کو بہتر طور پر سمجھ سکے. اسٹرولوجی کیا ہے، اور پھر علم فلکیات حقیقت کے اندر کیا ہے، علم نجوم کیا ہے، پامسٹری کیا ہے، ہاتھوں کا دیکھنا کیا ہے، سیاروں کا علم کیا ہے، ستاروں کا علم کیا ہے، اب ہماری زندگیوں کے اوپر ان کے اثرات کیا ہے، امپیکٹ کیا ہے. روزمرہ زندگی کے اندر ہم تجسس اپنی زندگی کے اندر اختیار کیے ہوئے ہیں کہ میرا دن کیسے گزرے گا، میرا ہفتہ کیسے گزرے گا. یہ ساری سٹوریز جو ہیں یہ بائبل کے اندر موجود ہیں. سو آج ہم جانیں گے کہ اس کے اثرات انسانی زندگی کے اوپر کیسے ہوتے ہیں، اور مذاہب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، فرقوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اور کتابوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے، ان کتب کو، الہامی اسکرپچرز کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم ان ساری باتوں کو آج جانیں گے. آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں. دانیل کی کتاب پہلا باب پہلی آیت سے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا آغاز ہوتا ہے شاید
शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 30वें साल शाह बाबुल नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया। गोया के यहोयाकीम जो यहूदियत का बादशाह है, जो जुड़ा के कबीले का बादशाह है, उसके दौर के अंदर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि लोगों ने मिलकर बाबल के ऊपर हमला किया और बाबल का जो बादशाह है, बाबलियों ने यरूशलेम के ऊपर हमला किया। तो जो बाबल का बादशाह है, बाबल का बादशाह उस जमाने के अंदर नबूकदनेस्सर है और नबूकदनेस्सर बादशाह सल्तनत करता है, राज करता है मेसोपोटामिया के अंदर, बाबल के अंदर। और उसने आके हमला किया, नबूकदनेस्सर ने आके हमला किया यरूशलेम के ऊपर। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वहां से लोगों को उठाया और उठाकर लेकर आ गया खित्ताए बाबल के अंदर। और बाबल के अंदर जब लाया गया तो इनमें से 4 नौजवानों का इंतखाब किया गया, जिनमें दानियेल नबी है, जिनमें हननिएल है, जिनमें मिसाएल है, जिसमें अजरिया है। और इन 4 नौजवानों से कहा गया कि तुम कसदियों का इल्म सीखो, कलेडियन लिटरेचर पढ़ो। और इन 4 से कहा गया कि तुम कलेडियन लैंग्वेज पढ़ो। सो इन्होंने लैंग्वेज भी पढ़ी और लिटरेचर भी पढ़ा। और फिर 3 साल इन्हें दिए गए यूनिवर्सिटी के अंदर आला तालीम हासिल करने के लिए। जब तुम इस तालीम को खत्म कर लोगे फिर बादशाह तुम्हारे साथ बात करेगा, क्योंकि उसकी शर्त यह है कि बादशाह उतनी देर तक तुम्हारे साथ बात नहीं करेगा जब तक तुम इस काबिल ना हो जाओ कि उसके सामने आके खड़े हो सको और उसके साथ कम्युनिकेशन कर सको किंग के सामने। सो बादशाह नबूकदनेस्सर के सामने खड़ा करने के लिए दानियल को, हननिएल को, मिसाएल को, अजरिया को कलेडियन लैंग्वेज सिखाई गई, कलेडियन लिटरेचर पढ़ाया गया, कलेडियन तमाम चीजों का इल्म जो है, नॉलेज जो है, वो इन 4 नौजवानों को दिया गया। सो एक टाइम आ गया जब इन 4 नौजवानों को खड़ा करना था बादशाह के सामने और जनरल टेस्ट था। और ये टेस्ट क्या था? IQ लेवल का टेस्ट था। ये टेस्ट ये था एजुकेशनल टेस्ट था। ये टेस्ट ये था कि आपका IQ लेवल क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके अंदर लर्निंग पावर कितनी है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, आपके अंदर क्विक लर्निंग पावर कितनी है। तो ये सारी चीजों का इकट्ठे तौर पर एग्जाम था और ये फाइनल एग्जाम था। और एग्जाम क्या था? तमाम तर उलिमा इकट्ठे हैं, तमाम तर मशाइख इकट्ठे हैं, तमाम तर वो कबीना जितनी है, रॉयल कबीना जितनी है, मैं यूं कहूंगा कि पूरा पार्लियामेंटी निजाम जो आज का है, उस जमाने के अंदर बादशाही निजाम था। वजीर वहां पर थे, वुजरा वहां पर थे, उलिमा वहां पर थे, उमरा वहां पर थे। इसका मतलब है कि जो रॉयल कैबिनेट है वो वहां पर है और उस कैबिनेट के अंदर इन 4 नौजवानों को पेश किया गया और इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स को भी पेश किया गया। सो यूं मैं कहूंगा कि चांसलर जो है इन स्टूडेंट्स का एग्जाम ले रहा है और ये ओपन एग्जाम है। कोई भी इन पर क्वेश्चन कर सकता है, किसी किस्म का भी क्वेश्चन कर सकता है, किसी नोयत का भी क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि इन्हें लिटरेचर पढ़ने के लिए दिया गया है और लिटरेचर है, कलेडियन लिटरेचर पढ़ने के लिए दिया गया। सो बाइबल मुकद्दस बयान करती है हुआ क्या। 20वीं आयत के अंदर लिखा है 20 वर्स, डैनियल की किताब द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 वर्स 20 लिखा है, और हर तरह की खिरतमंदी, इसलिए वो बादशाह के हुजूर खड़े रहने लगे और हर तरह की खिरतमंदी और दानश्वरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा, उन तमाम फालगिरों और नजूमियों से जो उसके मुल्क, तमाम मुल्क में थे, 10 दर्जे बुलंद पाया, 10 दर्जे पावरफुल पाया। सो दानियल नबी ऐसी शख्सियत थी, जब उसका कंपैरिजन किया गया नजूमियों के साथ, जब उसका कंपैरिजन किया गया एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ, जब उनका कंपैरिजन किया गया उन लोगों के साथ जो सितारों का इल्म जानते हैं। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब उसका कंपैरिजन किया गया और जब ओपन टेस्ट हुआ, जब डिबेट हुई, तो एक तरफ दानियल खड़ा है, दूसरी तरफ सारे इल्म नजूम के माहिरीन खड़े हैं, इन इल्म नजूम के स्कॉलर्स खड़े हैं। सो उन स्कॉलर्स के दरमियान जो है वो नबूकदनेस्सर है। सो नबूकदनेस्सर ने जब उनका टेस्ट लिया तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है 10% 10% अबव उन्हें पाया। और किसको पाया? दानियल को। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है दानियल को 10 दर्जे 10% उसका नॉलेज जो था तमाम नजूमियों से ज्यादा था। इसका मतलब यह है कि जो नजूम का इल्म है ये तो दानियल ने सीखा। दानियल ने कितना सीखा? बाइबल के अंदर लिखा है नजूमियों से 10 दर्जे बड़ा।
सो ये नजूमी जो है तो गोया नबी भी है, नबूवत भी इन्हें दी गई, इन्हें रसालत दी गई, इन्हें पैगंबरी दी गई, इन्हें किताब दी गई, इन्हें इल्हाम दिया गया। सो नबी एक जो है वो खड़ा होता है दरबारे नबूकदनेस्सर के अंदर, दरबारे शाह बाबल के अंदर, और मुकाबिला कर रहा है नजूमियों के साथ, मुकाबिला कर रहा है वो जो इल्म नजूम के माहिरीन हैं। सो उनके मुकाबले में जो नॉलेज था वो सबसे ज्यादा दानियल का निकला। इस वजह से बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है दानियल को नजूमियों का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, नजूमियों का सरदार बना दिया गया, नजूमियों का सरदार बना दिया गया। अब ये नजूमी है कौन जिनका सरदार बना दिया? क्यों? क्योंकि इतना नॉलेज किसी के पास नहीं है, क्योंकि दानियल ने नॉलेज हासिल किया है, दानियल ने कलेडियन नॉलेज हासिल किया और इल्म नजूम का इल्म हासिल किया और उनसे ज्यादा पावरफुल हो गया, 10 दर्जे ज्यादा। अब आगे बढ़ेंगे। जब ये नजूम का इल्म दानियल ने हासिल कर लिया तो इससे पहले जो इस इल्म का सरदार था, या मैं इसको यूं कहूंगा जो इस इल्म का प्रमोटर था, या मैं यूं कहूंगा जो इस इल्म का चांसलर था, इस इल्म का प्रिंसिपल था, जो स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जाता था, कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जाता था, इस इल्म का जो माहिर था, आइए उसका नाम मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर तो आपके पास इस वक्त बाइबल मुकद्दस मौजूद है, मेरे साथ निकाल लीजिए द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 39, द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 39 वर्स 3, थर्ड आई। जब आप जानते हैं दानियल अभी गालिबन 14-15 साल की उम्र के थे, तो उस जमाना के अंदर बाइबल बताती है कि हमले हुए और फिर उसके बाद पै दर पै यरूशलेम के ऊपर हमले हुए, और उनमें उन हमलों के अंदर जब एक हमला हुआ तो उसके अंदर एक शख्स था जो नजूमियों का सरदार था। यहां बाइबल मुकद्दस के अंदर उन्हें मजूसी भी कहा गया है। जो इल्म नजूम के माहिरीन है, जो इल्म नजूम के माहिर हैं, उन्हें मजूसी कहा गया है। और मजूसी हकीकत के अंदर वो लोग हैं जो सितारों के इल्म को जानते हैं, जो ये देखते हैं कि कौन सा सितारा कौन से बुर्ज में कब और किस वक्त दाखिल होगा, और उसका इंपैक्ट जो है वो मौसमों पर क्या होगा, हालात पर क्या होगा, सल्तनतों पर क्या होगा, बादशाहतों पर क्या होगा, उसका इंपैक्ट या असर जो उसका है वो दुनियावी जिंदगी के अंदर कैसे होगा। तो वो सारे इल्म को जानने वाले मजूसी कहलाते थे उस वक्त। और उनका जो सरदार था, द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 39 वर्स 3 के अंदर लिखा है, और शाह बाबल के सब सरदार यानी नीरगिल, सराफर, सिमागर, नबू, सिरासकीम, ख्वाजा सराओं का सरदार, नीरगिल, सराफर, मजूसियों का सरदार। सो ये मजूसियों का सरदार सराफर पहले था। सो सराफर को हटा दिया गया कि तेरा नजूम जो है ना ये अब पुराना हो गया है। दानियल ने आगे इसको जिद्दत दी है और ये नजूम का इल्म जो है ये बेहतर है। अब आप परेशान हो गए होंगे और हैरान भी हुए होंगे कि मजूसियों का सरदार, नजूमियों का सरदार। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ आप खोल सकते हैं, मेरे साथ आप खोल सकते हैं दानियल की किताब, उसका दूसरा बाब, उसके 48 वर्ष के अंदर लिखा, तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उसे बहुत बड़े बड़े तोहफे तहाइफ अता किए और उसको बाबल के तमाम सूबों पर फरमा रवाई बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। और आगे अगर चल के देखें चैप्टर 5 वर्स 11 के अंदर लिखा है, तेरी मुमलकत में एक शख्स है जिसमें कदूस इलाहों की रूह है और तेरे बाप के अय्याम में नूर और दानिश और हिकमत इलाहों की मानद उसमें पाई जाती थी, और उसको नबूकदनेस्सर ने तेरे बाप ने साहिरों और नजूमियों और कसदियों और फालगिरों का सरदार बनाया है। तो वो सरदार है। सो इसका मतलब है नजूम
کے علم کا سردار جو ہے یا نجومیوں کا سردار جو ہے، جو مہان نجومی ہے، جو مہان نجومی ہے، وہ دانیل ہے۔ اب مہان نجومی دانیل کیوں ہو گیا؟ سردار کیوں بن گیا؟ ایڈمنسٹریٹر کیوں بن گیا؟ دل تھام لیجیے، آگے بڑھوں گا، سمجھیے اس بات کو۔ ہم نے نجوم کے علم کو جادوگری کے ساتھ منسوب کیا ہوا ہے۔ آگے چل کے سیکھتے ہیں، تھوڑی دیر ذرا انتظار کر لیں۔ پہلی بات، یہ علم نہایت قدیم علم ہے۔ نوٹ کر لیں اس بات کو۔ دانیل سردار جس کا ہے، دانیل جس علم کو لوگوں کے اندر پروموٹ کرتا ہے، اور بائبل کے اندر اس کی بابت لکھا کہ جب نجومیوں کے ساتھ کمپیئر کیا گیا نا، نالج کو، ڈینیل کے نالج کو، دانیل کے نالج کو کمپیئر کیا گیا، یا ایگزام اس کا لیا گیا، اور ایگزام لینے والا کون تھا؟ بڑے بڑے اسکالر تھے وہاں پر، ماہرین علم فلکیات وہاں پر تھے، ماہرین نجوم جو علم نجوم کے ماہر تھے وہ وہاں پر تھے۔ انہوں نے ٹیسٹ لیا دانیل کا، نوجوان کا، 3 سال کے بعد، 3 سالہ اس نے اپنا کالج ختم کیا، گریجویشن کر لیا، یونیورسٹی اس نے کمپلیٹ کی، اور یونیورسٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد جو فائنل ٹیسٹ تھا اس کے اندر اتنا انٹلیکچوئل یہ شخص نکلا، اتنا خوبصورت نوجوان، اتنا انٹیلیجنٹ نوجوان، جس کا آئی کیو لیول اتنا زیادہ تھا، جو اتنا کوئک لرنر تھا، جو ایک دم چیزوں کو سیکھ لیتا تھا۔ دانیل کو 10 درجے 10% مارکس زیادہ ملے، اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، کوئٹ کرو تم اپنی جابس کو، یہ بندہ آ گیا ہے، یہ نوجوان آ گیا ہے، چلو اس کو دے دو۔ پھر کیوں یہ دیا گیا؟ کیوں لوگوں کی جابس کو دانیل نے پیچھے کیا اور خود سردار بن گیا؟ آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں۔ بائبل مقدس میں ستاروں کا جو علم ہے یہ قدیم سے ہے، سٹارز جو ہیں یہ قدیم سے ہے، سیارے قدیم سے ہیں، اجرام جو ہے، یا میں یوں کہوں گا جو آسمان کے اوپر سیارے ہیں، ستارے ہیں، یہ تو قدیم سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں جب زمین و آسمان کو بنایا تو اس آسمان پر خدا نے 2 نیر بنائے، ایک نیر اکبر جسے ہم سورج کہتے ہیں، سن کہتے ہیں، اور ایک نیر اصغر جسے ہم چاند کہتے ہیں، مون کہتے ہیں۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے اور اس نے ستارے بھی بنائے، اور پھر پالوس رسول کہتا ہے ہر ستارے کا جلال الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کا جلال الگ ہے، اس کی پاور الگ ہے۔ پھر اور آگے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے جب ہم بڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا جاتا ہے کہ خدا نے دانیل نبی کے سے پہلے اسی سرزمین پر، جس سرزمین کے اوپر دانیل علم نجوم کا استاد بن کے بیٹھا ہوا ہے، ماہر بن کے بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر سردار کے طور پر خدمت کر رہا ہے، نجومیوں کے اوپر حاکم اور سردار بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر اسی سرزمین پر، اسی خطے کے اندر خدا ابراہیم سے بھی مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے باہر آ، اور اس کو اس کے خیمے سے باہر لے کر جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ کر، اور کیا کر تو ان ستاروں کو گن سکتا ہے؟ سو اس کا مطلب ہے خدا مطالعہ کرواتا ہے ستاروں کا، سیاروں کا، خدا مطالعہ کروا رہا ہے۔ اور ابتدائی زمانے کے اندر لوگ ستاروں کو دیکھتے تھے، اور آگے چل کر میں سکھانے لگا ہوں، آگے چل کر ہم سیکھنے والے ہیں۔ سو بائبل مقدس میں لکھا خدا نے ابراہیم نبی کے ساتھ کلام کیا کہ ان ستاروں کو دیکھ۔ اگر آپ ایوب کی کتاب دا بک آف جاب چیپٹر 22 ورس 12 کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کیا آسمان کی بلندی میں خدا نہیں، اور تاروں کی بلندی کو دیکھ وہ کیسے اونچے ہیں۔ یہ ایوب کے ساتھ، وہاں خدا ابراہیم کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ اور میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلا جاؤں، جو ایوب نبی ہیں، ذرا غور سے دل تھام کے سنیے گا اور اوپن مائنڈڈ ہو کے سنیے گا، کیونکہ میں ریسرچ کے لیے دروازے کھول دیتا ہوں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کئی مرتبہ کسی کو جھٹکا لگتا نا میں گالا کٹا لگ پیتا ہے۔ بھئی آپ کے دماغ کو اگر جھٹکا لگ رہا تو اس میں میرا کیا پرابلم ہے؟ پرابلم تو آپ کا ہے کہ آپ ریسرچ اس کے اوپر کریں، دیکھیں۔ اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیدائش کی کتاب پہلی کتاب نہیں ہے بائبل میں جو لکھی گئی، ترتیب کے لحاظ سے پہلی کتاب ہے لیکن لکھنے کے لحاظ سے پہلی نہیں ہے۔
पहली किताब अय्यूब नबी की किताब है। बाइबल मुकद्दस के मुसन्नफीन या बाइबल मुकद्दस के जो बड़े बड़े उलीमा हैं, अगर आप उनकी तफासीर और उनकी तरतीब और इबरानी कुतुब मुकद्दसा की या बाइबल मुकद्दस की तरतीब और उसको सिस्टमैटिकली देखें तो जो अय्यूब नबी की किताब है ये पहले किताब लिखी गई है और इस किताब के अंदर खुदा सितारों का इल्म दे रहा है। इसका मतलब है जब जमीन और आसमान बनने के बाद जो पहली किताब लिखी गई वो अय्यूब की किताब है और अय्यूब के साथ खुदा कलाम करता है। देख इनकी बुलंदी, देख इनका चाल चलन, देख इनका चलना फिर और आगे चलकर हम सीखने वाले हैं। सो इसका मतलब है खुदा अगर कलाम करता है तो इसके अंदर कोई राज मख्फी है। सो ये जमाना कदीम से आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा है और ये चलते 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 जब दानियल नबी तक पहुंचा है तो इसको जिद्दत दी गई। ऊर जहां पर अब्राहम रहते थे, जो ऊर की सरजमीन है, जो कदीम बाबुल की सरजमीन है, जो आज भी मौजूद है खंडरात की शक्ल के अंदर और जिसकी खुदाई की गई, जिसके ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट ने काम किया और आजरुए इल्म असारियात या मैं यूं कहूंगा आजरुए इल्म असार कदीम अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी या आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इस बात का दावा करते हैं और उनके दावे की तस्दीक जो है वो भी मैं आपको बताता चला जाऊं। ऊर की सरजमीन के ऊपर से जब खुदाई की गई उन खंडरात के अंदर से, उन टीलों के अंदर से बहुत सी क्ले टैबलेट निकली हैं और उन क्ले टैबलेट्स के ऊपर उस जमाना के अंदर जो सितारे थे, इल्म फल्कियात था या फल्क का इल्म था, जो सितारों का इल्म, सूरज का इल्म, चांद का इल्म और इनके अलूम का इंपैक्ट जो था बनिनो इंसान पे क्या होता है, इसकी सारी तरतीब जो है उन टैबलेट्स के ऊपर लिखी हुई थी। कौन सा बुर्ज कब कैसे किस तरीके से किस महीने में या किस जगह पर जाके दाखिल होता है दूसरे बुर्ज के अंदर, तो ये सारी तरतीब आज ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है। और ये मैं बात कर रहा हूं जमाना इब्राहिम की, मैं जमाना अमराफल हुमुराबी नमरूद के जमाने की बात कर रहा हूं। और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये टैबलेट जो है जिसके अंदर जदीद इल्म आता गया फल्कियात का, जब आता है टाइम हुमुराबी के बाद 1300 साल के बाद जब आता है अमराफल या अमराफल के बाद जब आता है टाइम नबूकत नजर का, तो नबूकत नजर के दौर के अंदर ये टैबलेट जो थी लाई गई थी नैनवा की लाइब्रेरी से, अशूर बनी पॉल की लाइब्रेरी से, और वो जो था वो कैलेडियन लिटरेचर का हिस्सा था और उसके ऊपर क्यूनिफॉर्म राइटिंग के अंदर आज भी चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को ये चीज बता रही है कि उस जमाना के अंदर दुनिया के अंदर अगर कोई कदीम इल्म है और उसका सबूत तहरीरी तौर पर अगर कोई है तो वो ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर मौजूद है और उसका ओरिजिन जो है, जो उसको बनाने वाले जो हैं या उसको इजाद करने वाले जो हैं, जो उसको पूरा निजाम तैयार करने वाले हैं, वो बाबली लोग हैं, वो कसदी लोग हैं, वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के कलाम वहां से खुदा के अपने बंदा इब्राहिम को निकाला था, वहां के ये लोग है खुदा का कलाम हमें बयान कर रहे हैं। ये उस जमाने की बात और आज भी वो टैबलेट जो है मनो अन मौजूद है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये हकीकत के अंदर आज जो इल्म नजूम है, इल्म नजूम के दर्जात है। अगर आप हिंदुइज्म का मुतालिया करें तो हिंदुइज्म के अंदर भी इल्म नजूम का आपको बड़ा गहरा तस्करा मिलेगा। हिंदुइज्म के में इनमें नजूम की 3 स्टेजेस बयान की गई है, इनको कैटेगराइज किया गया है, इनको 3 कैटेगरीज के अंदर पेश किया गया है। इन्हें संधारित कहा गया है। संधारित का मतलब है जो सूरज है या चंद्रमा है या सूरज है, सूरज ग्रहणों की बाबत, सूरजों की बाबत और उसके ग्रहण की बाबत, चांद के ग्रहण की बाबत, ये सारी स्टोरीज जो है ये इंसान की लाइफ के ऊपर क्या असर अंदाज होती है और जो सितारे हैं उसके बुर्ज जो हैं वो इंसान की जिंदगी के ऊपर किस तरीके से असरात पैदा करते हैं। इनको 3 दर्जात के अंदर जो है हिंदुइज्म ने बंद किया है। और फिर दूसरा दर्जा जो है वो संभायथा है। तो ये इसका जो मतलब है संहिता
समहीता ये जो लफ्ज है शायद मेरा थोड़ा सा तलफ्फुज जो है संस्कृत का थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। समहीता ये जो था, इसका मतलब है कि इन सितारों का जो इम्पैक्ट है या असर है या इसके ऊपर जो असरात है दुनिया के ऊपर, मुमलकतों के ऊपर, सल्तनतों के ऊपर, वो क्या है। और तीसरा दर्जा है वो है हूरा। हूरा जो है ये है इंसान की जाती जिंदगी के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो ये तीन दर्जात जो है ये बयान किए गए हैं। लेकिन इल्म नजूम जो है या फल्कियात का इल्म जो है, जैसे आज आप देख सकते हैं इल्म फल्कियात का जो इल्म है इसके अंदर और भी दर्जात है। सो पहली बात, अब मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जो मॉडर्न इंट्रोडक्शन है वो देना चाहता हूं ताकि आप उसके साथ इसका मुकाबला कर सके, कंपेयर कर सके। और फिर आज हम जो रसाइल के अंदर पढ़ते हैं, जरायद के अंदर पढ़ते हैं, मैगजीन्स के अंदर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं और फिर अखबारात, न्यूज़पेपर्स के अंदर और टेलीविजन के ऊपर देखते हैं ये क्या है सारा सिलसिला और इसका ताल्लुक दानियल के साथ और बाइबल मुकद्दस के साथ क्या है, अभी थोड़ी देर तक जानेंगे। सो इल्म नजूम जो है, नजम लफ्ज है उर्दू जुबान में नजम का मतलब जो है ये है नजूम की जमा। सो नजम का जो मतलब है वो है सितारा। सो दूसरे लफ्जों में हम यूं कहेंगे सितारों के इल्म या सितारों के मुतालिया का नाम इल्म नजूम है। अब ये सुनिए गौर से, सितारों के मुतालिया का नाम जादू नहीं। फिर सुन लीजिए, सितारों के मुतालिया का नाम नजूम है। अब इल्म नजूम के अंदर जादू की अगर कोई शिक है तो वो थोड़ी देर तक मैं आपको उस पर भी लेकर आऊंगा, लेकिन इसका ओरिजिन जरा सुन लीजिए, इसका आगाज सुन लीजिए। आगाज में इसमें जादू का आंसर नहीं है, इसमें ज्योतिष का आंसर नहीं है, इसमें इल्म जाफर का आंसर नहीं है और इसमें बाकी जो रामिल है, साखिर है, जादूगरी है, इसका असर नहीं है। या दूसरे लफ्जों में कहूंगा कि इसका वजूद हमें नजर नहीं आता, हमें नजर आता है इसका वजूद कि ये सिर्फ सितारों का मुतालिया है, ये स्टार्स का मुतालिया है, ये सैयारों का मुतालिया, प्लैनेट्स एंड स्टार्स। अब इसको मैं खोल के बयान करने लगूं। प्लैनेट्स एंड स्टार्स, इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों की रिसर्च, इन दोनों के सर्वे और इन दोनों की चीजों का मुतालिया जो है उसका नाम जो है वो है इल्म नजूम, जादू नहीं। फिर मैं बताने लगूं, जादू नहीं, मुतालिया। अब इस मुतालिया के अंदर पहले पर 7 जो है प्लैनेट्स शामिल किए गए। इस मुतालिया के अंदर जो शुरू में बाबुल के अंदर जो मुतालिया किया गया, जो कैलेडियन टैबलेट्स के ऊपर इसका जो मुतालिया है, जो मैंने बताया क्यूनिफॉर्म राइटिंग के अंदर ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर पढ़ा है, उसके मुतालिया के मुताबिक प्लैनेट्स जो थे वो 7 गिनवाए जाते थे और उनमें जो सन है और फिर मून है, इसका मुतालिया। सन और मून का तो आप पता ही है, बाइबल के अंदर बहुत ज्यादा तस्करा है, बहुत ज्यादा मुतालिया है। फिर मुरीख की बाबत हम बात करते हैं, मार्स की बाबत हम बात करते हैं। फिर तीसरा प्लैनेट जो है वो है मर्करी की बाबत हम बात करते हैं, अतारत भी कहते हैं। और चौथा जो 5वां प्लैनेट जो है वो है मुश्तरी जो है, जुपिटर या मुश्तरी। और जो छठा है वो है जोहरा सितारा या वीनस की बात हो रही है। और फिर जो है वो है जोखल जो है ये सेंट्रन, ये सितारों की बात हो रही है, ये सैयारों की बात हो रही है। तो बुनियादी तौर पर इन्हें क्वाकब भी कहा गया, क्वाकब, प्लैनेट्स, स्टार्स। जो स्टार्स जो है ना, ये स्टार्स नहीं, ये प्लैनेट्स है, ये याद रखें, ये प्लैनेट्स है। लेकिन जदीद साइंस ने इसके अंदर और इजाफा किया और यूरेनियस और एक और सितारा है प्लूटो को डाल दिया और नेपच्यून को डाला। सो ये मिलकर तकरीबन 10 सैयारे बुनियादी तौर पर बनते हैं। अब ये बुनियादी तौर पर 10 ये सैयारे हैं और फिर इनके बुर्ज हैं और जो है वो 12 बुर्ज हैं। इसके 7 पहले सैयारे या 10 सैयारे, 12 बुर्ज। अब ये 12 बुर्ज हैं क्या इनका बाइबल के साथ ताल्लुक है? क्या इस मुतालिया का बाइबल के साथ कितना ताल्लुक है? बाइबल इस मुतालिया की बाबत क्या कहती है? सो अगर आप तैयार हैं, मुश्किल तो है जो मैं आप कहने जा रहा हूं, मुश्किल तो है जो मैं बातें करने जा रहा हूं, लेकिन ये बाइबली बातें हैं। आइए
बाइबल का मुतालिया करते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरा दिल थाम के खोलिए मेरे साथ अय्यूब नबी की किताब, द बुक ऑफ जॉब। खोलिए, जरूर लीजिएगा। अगर आपके पास इंग्लिश वर्जन है तो प्लीज उसको ओपन कीजिएगा। अगर आपके पास उर्दू है, हिंदी है, पंजाबी है, कोई भी आपके पास बाइबल है और आप इस वक्त मेरे साथ लाइव जा रहे हैं, प्लीज अभी इसे खोलिएगा। मैं आपके रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। मैं थोड़ा पॉज दे रहा हूं, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं आपका, मैं आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आप अपनी बाइबल को खोल सके। मैं उतनी देर तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कोशिश आप नहीं करेंगे अपनी बाइबल खोल लेंगे। और जितने उर्दू जुबान पढ़ने वाले हैं वो भी, उनसे भी मैं नहायत अदब और एहतराम से गुजारिश करूंगा, प्लीज अपनी बाइबल खोलिए। द बुक ऑफ जॉब, बाइबल मुकद्दस में अय्यूब की किताब और उसका 38वां बाब, 38 चैप्टर, जॉब 38 चैप्टर वर्स 31। और अगर आपने खोल लिया है तो प्लीज मुझे बताते चले जाए। मैं देख रहा हूं आपको सारे इस वक्त जितने लाइव चल रहे हैं, मैं आपको देख सकता हूं कि इस वक्त आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत तादाद में लोग मेरे साथ सुन रहे हैं। तो प्लीज अगर आपने खोल लिया बाइबल तो प्लीज इसको मुझे बताते चले जाए। सो इस आयत को मैं पढ़ूंगा। ये है थोड़ी मुश्किल और ये टिपिकल अरबी की आयत है। ये बाइबल मुकद्दस में ये आयत ऐसी है जो टिपिकल अरबी की आयत है और ये अरबी जुबान के अंदर ही इस आयत को लिखा गया है और इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी शायद हो तलफ्फुज के अंदर। लेकिन इंग्लिश में मैंने इसलिए आपको कहा, हिंदी मैंने आपको कहा कि अगर हिंदी जुबान आपके पास है और आप उसके में पढ़ रहे हैं तो प्लीज खोल लीजिएगा। पंजाबी की बाइबल अगर आपके पास है, पंजाब में आप लोग रहते हैं, इंडिया पंजाब में रहते हैं तो खोल लीजिएगा। लेकिन पाकिस्तानी पंजाब के अंदर तो उर्दू में पढ़ी जाती है तो आप उर्दू में खोल लीजिएगा। मैं पढ़ने लगा द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 38 वर्स 31, क्योंकि ये आज की बेस्ट आयत है जो हमारा दिमाग को सही कर सकती है। लिखा है, मैंने आपको पहले बताया, अय्यूब की किताब पैदाइश की किताब से पहले लिखी गई है। अय्यूब की किताब पैदाइश की किताब से पहले लिखी गई है। सो आइए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें। यहां पर यूं लिखा है, क्या तू उक्दे सुरैया को बांध सकता है? क्या तू उक्दे सुरैया को बांध सकता है या जब्बार के बंधन को खोल सकता है? क्या तू मनकतुल बरूज को उनके वक्तों पर निकाल सकता है या बिन आतुल नाश को उनकी सहेलियों के साथ रहबरी कर सकता है? क्या तू आसमान के कवानीन को जानता है? मैंने पहले बताया ये अरबी जुबान में लिखी हुई आयत है। इसके अंदर इल्मे फल्कियात या इल्मे नजूम जो है, कंप्लीट इल्मे नजूम, परेशान ना हो जाइए, कंप्लीट इल्मे फल्कियात, एस्ट्रोलॉजी, ये सारा इल्म जो है, फल्कियात का इल्म जो है, फल्क का इल्म जो है, आसमान का इल्म जो है, सितारों का इल्म जो है, प्लेनेट का इल्म जो है, मैं आगे इसकी तशरीह करने जा रहा हूं थोड़ी थोड़ी, तो आराम से मैं इसकी तशरीह करूंगा ताकि आज आप इसको बेहतर तौर पर समझ लें। सो बाइबल मुकद्दस में ये सिखा रही है और फिर इसका मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं अब डैनियल नबी के साथ। मैं अब इसका कंपैरिजन करने जा रहा हूं पुराने बाइबल के साथ। मैं अब इसका कंपैरिजन करने जा रहा हूं ऊर के साथ। मैं इसका कंपैरिजन करने जा रहा हूं कैलेडियन लिटरेचर के साथ। मैं इसका कंपैरिजन करने जा रहा हूं ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर रखे हुए टैबलेट्स के साथ, ताकि आप खोल जाए आपका दिमाग और आप इसको वसी अकल और वसी दिमाग से सोच सके और फिर जान ले दानियल को क्यों बनाया गया था, इनका सरदार और 10 दर्जे इल्म उसका क्यों आगे था। पहली बात, ये जो इल्मे फल्कियात है जिसे मैंने पहले बताया कि सितारों का इल्म, सैयारों का इल्म, और इसको कहा गया है कि ये जो क्वाकिब हैं या यूं कहूंगा सितारे हैं, ये इनको बुर्ज भी कहा गया। ये 12 बुर्ज हैं और 10 सैयारे हैं। 10 सैयारे, 12 बुर्ज, और इनमें से कई मरतबा जो जमीन को भी कई लोग शामिल कर लेते हैं। जमीन भी सैयारा ही है जी। चांद, जो सूरज है, चांद जो है वो भी सैयारा है। कई लोग इसको जमीन को और जो है सूरज, चांद जो है वो कहते हैं ये उसका जैली सैयारा है या उसका जुज़ ही है। सो इस तरह के सैयारा, लेकिन बर्ड कैफ जो भी है इसमें
बात यह है कि डिवीजन इनकी सैयारों से और बुर्जों से की गई है, और ये बुर्ज जो हैं ये इंसान की जात पर कैसे असर अंदाज होते हैं। नोट कीजिएगा, बाबली लोग जो थे, कदीम बाबली लोग या कलेडियन लोग जो थे, कसदी लोग जो थे, या इब्राहिम के जमाना के लोग जो थे, जैसे इब्राहिम से कहा कि देख आसमान की तरफ, और फिर अयूब नबी से कहा कि देख तू किनकी ऊंचाई देख, फिर मुकद्दस पालूस कहता है कि सितारे सितारे का जलाल फर्क है और इनके रंग बू फर्क है। सो आज जदीद साइंस ने इसका पूरे का पूरा अहाता करके हम सबों के सामने रख दिया, प्रूव कर दिया है कि वाकईतन ये आयात करीमा बिल्कुल ठीक है। सो आगे मैं बढ़ूंगा। आप जानते हैं कि 12 सैयारे, दोबारा मैं आपको सेक्सजेसिमल की तरफ लेकर जाऊंगा। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर सुना सेक्सजेसिमल, जहां पर मैंने ज्योमेट्री का जिक्र किया था, ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र किया था, जहां पर मैंने एंगल का जिक्र किया था, ट्राई एंगल का जिक्र किया था, और फिर जहां पर मैंने फिसागोरस पाइथागोरस की थ्योरी का जिक्र किया था। अगर उस लेक्चर को आपने सुना है तो उस लेक्चर का एक जुज यहां से और एलैबोरेट मैं करने जा रहा हूं। अब हुआ क्या, जब दानियल नबी ने कसदियों के उस लिटरेचर का मुतालिया किया तो कसदियों के उस लिटरेचर के अंदर 12 बुर्जों का जिक्र है। फिर सुने, 12 बुर्ज। अब ये जो 12 बुर्ज है जिसको आप लोग गलतुल आम स्टार्स कहते हैं, और आप कहते हैं, मैं आप इसलिए कह रहा हूं कि आप कहते हैं जिसको आप स्टार्स कहते हैं गलतुल आम ये कह रहा हूं, गलतुल आम का जो मतलब है वो है जो आप कहते हैं गलत और आम कहते जाते हैं, और ऐसी गलती आप करते हैं कि उस पर ना तो नदामत, ना पछतावा, ना ही उसके ऊपर कोई बात, क्योंकि ये स्टार है ही नहीं, ये बुर्ज है, ये स्टार नहीं है। अब ये स्टार जो है, स्टार और चीज है, बुर्ज और चीज है। सो आगे मैं बढ़ूंगा। ये पहली मर्तबा दुनिया के अंदर, पहली मर्तबा इवेंजलिन एडम्स एक खातून है। इवेंजलिन एडम्स एक खातून है, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट है और एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करती थी अमेरिका के अंदर, और इसने 19वीं सदी के अंदर एक किताब तहरीर की, और उस किताब के अंदर उसने बुर्जों की बात की है। उसने इस किताब के अंदर एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस की बात की, और इस प्रैक्टिस को लेकर उसने 12 बुर्ज गिनवाए और कहा कि एक एक बुर्ज आपके हर महीने के ऊपर या आपकी तारीख पैदाइश के ऊपर असर अंदाज होता है। जैसे बुर्ज हम्मल है, या बुर्ज सूर है, सरतान है, असद है, या इसके इंग्लिश नाम भी हैं, वो भी मैं थोड़ी देर तक इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा। जैसे एरियस है, और टोरस है, और जेमिनाई है, कैंसर है, लियो है, और फिर वर्गो है। तो ये सारी डिटेल जो है मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूं। ये जो सारे बुर्ज हैं ये हकीकत के अंदर डिजाइन किए गए, जरा गौर से सुनिएगा इसको, डिजाइन किए गए खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश मुबारका से पहले, दानियल नबी की पैदाइश से पहले ये बुर्ज डिजाइन किए गए। और इन बुर्जों को डिजाइन कैसे किया गया, अब ये जो कदीम लोग थे बाबली, जिसे कसदी हम कहते हैं, जिसको मैंने कहा जिनका ताल्लुक जाके इब्राहिम के सितारा से जाके मिलेगा, ये रात को आसमान का मुतालिया किया करते थे। और आसमान का मुतालिया कैसे करते थे, अगर आप आज बाहर लेटे हैं खुले आसमान के नीचे, और खुले आसमान के नीचे आप लेटकर आप ऑब्जर्व करें सितारों को। मुझे याद है कि मैं जब छोटा बच्चा था और मैं अपने घर में लेटा होता था, आसमान की तरफ मेरी निगाहें होती थी। उस जमाने में तो आसमान के ऊपर इतनी पोल्यूशन नहीं थी, आसमान साफ था, शहरों के अंदर भी काफी साफ था, खुली छत थी, आसमान नजर आ रहा है, और सितारे को अकाउंट कर रहा था मैं। ओके, ये सितारा है, कई घंटे ये सिलसिला जारी रहता था। लेकिन फिर नजर वहां क्या आता था, वो कोई इल्म नहीं था, नजर क्या आता था, हम कहते थे ओए ये देखो 7 सहेलियां
یہ پھر ہم نے وہ بنایا ہوا تھا 7 سہیلیاں ہیں یہ، پھر کئی شکلیں وہاں پر آپ کو نظر آئیں گی ایسے جیسے ریچ ٹائپ ہے، پھر کئی شکلیں ہمیں وہاں پر نظر آئیں گی بیٹھے بیٹھے کہ ایسے بندہ ہے جیسے ریچ ہے جو ستاروں کی شکلیں بنا رہے ہیں، پھر ہمیں وہاں پہ نظر آ رہی ہیں اور شکلیں بھی نظر آتی ہیں، ریچ کی شکل نظر آ رہی ہے اور دیگر جانوروں کی ہم شکل بنا رہے ہیں کہ یہ شکلیں ہیں۔ اب یہ کوئی آج سے تو نہیں ہے، یہ کوئی میں نے ابزرو تھوڑا کی ہے، مجھے تو اس وقت پتا بھی نہیں تھا یہ شکلیں ستاروں کی بنی ہیں، کیونکہ وہ ستاروں کے ایسے آج بھی آپ دیکھ لیجئے بڑے سادہ لوگ انسان جو ہیں بادلوں کے اوپر چیزیں دیکھ کے تو چیزیں بنتی ہیں، اور آج جدید ماڈرن دور کے اندر تو آج اسکائی کے اوپر جو ہے وہ اب تو ورک پورا ہو رہا ہے، اب تو اس کے اوپر بنا انویسٹمنٹ، آپ جس طرح کی مرضی تصویر چاہے، اگر آپ جیزس کی تصویر بنانا چاہتے ہیں تو آپ بادلوں پہ یسوع مسیح کی تصویر بنا سکتے ہیں، کسی کی بھی آپ تصویر بنا سکتے ہیں، لیکن یہ دن میں ہوتا تھا، یہ میں رات کی بات کر رہا ہوں، رات میں ستاروں کے ساتھ ہم تصویریں بنائی جاتی ہیں، اور وہ علم جو ہے اسے فلکیات کے علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کیوں؟ آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے بائبل مقدس میں سے دیکھو، میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ پرانے زمانہ میں جو ابھی ٹیبلٹس ملی ہیں برٹش میوزیم کے اندر ان کو رکھا گیا ہے، اور بڑے بڑے میوزیمز کے اندر وہ کلے ٹیبلٹس پڑی ہیں، ان کے اوپر 12 برجوں کا ذکر ہے، اور کیسے سورج جو ہے وہ کن کن برجوں کے اندر جاتا ہے، کب کب جاتا ہے، اور کون کون سے ستارے کے اندر جاتا ہے، اور یہ جو برج ہیں یہ ستاروں کا جھرمٹ ہے، یہ یاد رہے، یہ جو برج ہیں یہ ستاروں کا جھرمٹ ہے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں، یہ برج جو ہے جیسے جبار ہے، جبار کو عبرانی زبان میں کیسل کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آسمان کے ستاروں کا جھرمٹ۔ جیسے جبار جو ہے نا، یہ بڑا دیو ہیکل شخص کو کہتے ہیں، یا دیو ہیکل جانور جو ہے جابر قسم کا، سو اس کی جو پکچر ہم ڈیزائن کرتے ہیں نا آسمان کے اوپر ستاروں کے اندر، اس یہ قدیم زمانہ کے دے، اور خدا ایوب کے ساتھ کلام کرتا ہے، یہ جبار جو ہے، یہ جبار جو ہے نا، یہ حقیقت کے اندر ستاروں کا جھرمٹ ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے بڑا دیو ہیکل چیز بن کے سامنے آتی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ کیا تو ان کے بندھن کو توڑ سکتا ہے، کیا ان کے بندھن کو، کیا تو جبار کے بندھن کو کھول سکتا ہے؟ یہ جو بنایا ہوا ڈیزائن ہے ستاروں کا آسمان کے اوپر، کس کو کھول سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، کیا تو بنات الناش جو ہے نا، بنات الناش حقیقت میں اسے دب بھی کہتے ہیں اور عیش بھی کہتے ہیں، اور عربی زبان کے لفظ ہے، اور اس کا مطلب لاش بھی ہے، اس کا مطلب لاش بھی ہے۔ تو ہم اس کو یوں کہیں گے کہ کیا تو جنازے کی بیٹیاں، تو ہم جسے ہم 7 سہیلیاں کہتے ہیں نا، کہ یہ آسمان پر یہ ستارے جو ہیں یہ 7 سہیلیاں ہیں، وہ 7 سہیلیاں جو ہمیں نظر آتی ہے حقیقت کے اندر وہ ہیں جو ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے، جس میں 4 ستارے آگے ہیں، 3 پیچھے ہیں، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے 4 پائی اٹھائی ہوئی ہے سے کسی جنازے کی، اور پیچھے 3 چل رہے ہیں، جیسے ہم 7 سہیلیوں کا جھرمٹ کہتے ہیں۔ یہ 7 سہیلیوں کا جھرمٹ نہیں ہے، یہ بنات الناش ہے، اور یہ بنات الناش کا مطلب ہے لاش کو اٹھانا۔ پھر سریا کی بات آتی ہے، سریا کا مطلب ہے انبار یا ڈھیر، اور یہ وہ ڈھیر ہیں جو ستاروں کا ڈھیر ہے، ستاروں کا جھرمٹ ہے۔ کیتھولک ترجمہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو کیتھولک ترجمہ کے اندر بھی یہی آپ کو ملے گا، اور پھر ہے منعات البروج۔ کیا تو منعات البروج کو اس کے وقتوں، منعات البروج جو ہے یہ حقیقت کے اندر مزار، اس کو عبرانی زبان میں مزارت کہا گیا ہے، اور مزارت کا جو مطلب ہے وہ ہے برج۔ یہ جو برج آپ کہتے ہیں نا، یہ میرا سٹار، یہ ہے منعات البرج، البرج جسے بروج اس کے لیے لفظ لکھا ہے، البروج جسے آپ برج پڑھتے ہیں۔ سو منعات البروج جو ہے یہ ہے مزاروت عبرانی زبان میں، اور اس کو ہم برج کہتے ہیں۔ سو یہ 12 برج ہیں۔ سو ان 12 برجوں کا جو تعلق ہے یہ آسمان سے ہے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ ہم لیٹ کے اس پہ بات چیت کرتے تھے، اور یہ علم فلکیات کے اندر آئے گا۔ اب جب آپ کو میں نے یاد ہو کہ میں نے سیکس جو ہے میں نے بتایا تھا لاسٹ کہ دانیل کے دور کے اندر سیکسیجیسیمل جو تھا، جو سسٹم تھا، جو 60 کا سسٹم تھا، 60 کا سسٹم یہ تھا کہ آپ دیکھ لیجیے یہ انگلیاں جو ہیں یہ 12
अकाउंट की जाती थी, क्योंकि हड्डियों के हिसाब से की जाती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये 12 थी, 12 अकाउंट की जाती थी, और इसी तरह 12 24 अकाउंट की जाती थी, और उसी से फिर एंगल तश्कील दिए गए, उन 60 के दर्जे के ऊपर एंगल तश्कील दिए गए, फिर ट्राई एंगल तश्कील दिए गए, फिर ज्योमेट्री तश्कील गई, और उसी के ऊपर ये स्टार्स का जो इल्म है वो बनाया गया। अब ये कैसे बनाया गया? आप जानते हैं कि साल के दिन कितने हैं? साल के दिन जो उस जमाना के अंदर थे 60 के हिसाब से, सेक्सिजेसिमल सिस्टम के हिसाब से 60 के हिसाब से 365 दिन बनते थे। हर महीने के 30 दिन बनते थे, हर महीने के 30 दिन बनते थे, और 30 दिनों के हिसाब से 12 के हिसाब से 12 महीनों की तश्कील दिए गए, और ये 12 बुर्जों के ऊपर है। ये जो बुर्ज है ना, अल बरूज जिसे कहा गया है, ये बुर्ज जो है, जिसे हम स्टार्स कहते हैं कि मेरा स्टार ये है, ये उन स्टार्स के ऊपर जो गलतुल आम, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, मैं ये लफ्ज गलतुल आम बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, जिसे हम स्टार्स कहते हैं आज के जमाना के अंदर, जिसे हमारे न्यूज़पेपर स्टार्स कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उनके ऊपर यह तश्कील दिया गया, और ये 30 के एंगल के ऊपर। उस जमाने में एंगल, जब मैंने बताया था ना, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री जो थी उस जमाने में जब आजाद की गई, तो ये 30 के एंगल के ऊपर बनाया गया। तो जो स्टार्स ऊपर आपको नजर आते हैं, जो बुर्ज आपको नजर आते हैं, जो उकदे सुरैया आपको नजर आती है, जो जब्बार आपको नजर आते हैं, जो अल बरूज आपको नजर आते हैं, बुर्ज आपको नजर आते हैं, ये बुर्ज हैं क्या? आइए थोड़ी देर बाइबल का जरा और आपके लिए मैं आसान मुतालिया करवाऊं। अगर अय्यूब की किताब द बुक ऑफ जॉब आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बाइबल है तो बुक ऑफ जॉब मेरे साथ निकाल लीजिए, चैप्टर 9 और उसकी वर्स नामी है, ताकि आपको पता चल जाए ये स्टार और बुर्ज और बरूज जो आप कहते हैं मेरी जिंदगी के अंदर असर करते हैं, ये बने कैसे और क्या हैं ये। नामा बाप और उसकी नामी है, उसने बिन आतुल नाश और जब्बार और सुरैया और जनूब के बुर्जों को बनाया, बुर्जों को बनाया, जिसे आज हम इल्म फल्कियात के अंदर बुर्ज कहते हैं। खुदा ने उन बुर्जों को बनाया। सो ये 12 हैं। सो अब जब जो कैलेडियन लोग थे या कैलेडियन लिटरेचर था जिसके अंदर से मैं ये बात कर रहा हूं, उस लिटरेचर के अंदर इन बुर्जों को 30 डिग्री पर रखा जाता है। अब 30 डिग्री के अंदर, अब दुनिया को आप ऐसे गोल है या यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, अब जब गुलाई की हम बात कर रहे हैं, 360 एंगल की बात कर रहे हैं, तो जब 360 एंगल यूं करके बनेगा तो 360 एंगल के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो बुर्ज है, एक बुर्ज जो है वो 30 डिग्री पर आएगा। तो अगर 30 डिग्री पर एक बुर्ज, यानी वो सितारों का एक झुरमट है, उसके अंदर सूरज का दाखिल होना या उस मदार के अंदर या उस चीज के अंदर गर्दिश करना सूरज का, उसको कहते हैं कि अब ये इस बुर्ज के अंदर चला गया। अब ये इस बुर्ज के अंदर चला गया, वो 30 डिग्री। अब ये वो जमीन पर बैठकर 30 डिग्री की पैमाइश करते थे। मैंने बताया ना, ट्राइंगल जो था वो उन्होंने बनाया। और ज्योमेट्री की बात जब कर रहे हैं तो ये अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वो ये कर रहे होते थे, वो 30 डिग्री को मापते थे कि 30 डिग्री हो गई है, और ये 30 डिग्री के मुताबिक ये रहते भी 30 डेज ही थे। डिग्री भी 30, डेज भी 30, और उन स्टार्स को आसमान को कि उन्होंने 30 डिग्री बनाई थी। जैसे हम शक्लें बनाते हैं ना, कि जब्बार की शक्ल है, सुरैया की शक्ल है, झुरमट की शक्ल है, मनकतुल बरूज है, तो बुर्जों, वो भी ऐसे बुर्ज उन्होंने बनाए थे। और ये सारे का सारा आज ब्रिटिश म्यूजियम में लिटरेचर पड़ा है, जो मैं अब बात कर रहा हूं, इसकी जदीद दौर के अंदर दरियाफ्त हो चुका है, मिल चुका है, जिसके ऊपर नजूम की बुनियाद रखी गई थी। अब इसको करते वो क्या थे? करते ये थे कि इसको जब पूरा कंप्लीट सर्कल होता ना, कि आज 30 डेज यहां ये जो इस बुर्ज के अंदर सूरज अपने मदार पर गर्दिश कर रहा है, फिर नेक्स्ट 30 का एंगल जो बनाते थे, और फिर वो 60 हो जाता था, और फिर ऐसे करते करते 360 तक जब आते थे तो साल पूरा हो जाता था। जब 360 तक आते थे तो साल पूरा हो जाता था। 12 बुर्ज का भी चक्कर लग गया, यानी हर 30 के एंगल के ऊपर चलते 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 360। और ये सारे मैप जो है, मैं जब इसकी हम जब इसकी अभी तो लाइव चल रहा है ना, ये तो थोड़ी देर तक हम इसकी एडिटिंग करके इसको आपको इसके अंदर, मैंने बताया था कि लाइव शो के अंदर मैं वो चीजें दिखा नहीं सकता, हम इसके अंदर वो डाल देंगे ताकि आपकी सहूलत के लिए हो कि ये बुर्ज कैसे बनाए जाते हैं। तो अब
اب خدا جب کلام کرتا ہے تو اس کو بنایا، اور یہ ہے برج جس کا ذکر بائبل کے اندر ہے، اور یہ ہے سٹارز جس کا ذکر بائبل کے اندر ہے۔ تو اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، اگر تو ایسا ہے تو پھر تھوڑا خطرہ ہے۔ اس سے کرتے کیا تھے؟ اس سے پیشن گوئیاں کی جاتی تھی۔ پہلی بات ذرا نوٹ کرتے جائے جلدی جلدی کوئکلی، اب اس کو میں ریپ اپ کرنے لگا ہوں۔ اس سے پیشن گوئیاں کی جاتی تھی، پروفیسیز کی جاتی تھی۔ پروفیسیز کیسی؟ پیشن گوئیاں کیسی؟ جو محکمہ موسمیات ہے یا موسم کی جو ویدر کی بات کرتے ہیں، آپ کے گوگل کے اوپر ویدر ہے، سو ویدر کی جو بات کرتے ہیں، ویدر کی رپورٹ کہاں سے آتی ہے جی؟ یہیں سے۔ یہ ویدر کی رپورٹ بھی تو یہیں سے آتی ہے۔ کون سے ڈگری کے اوپر کون سا سیارہ، کون سا اس وقت سٹار ہے، کون سا اس وقت چیز ہے، تو اسی کے حساب سے ویدر کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ جو نیویگیشن ہے وہ بھی تو اسی کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ سیٹلائٹ نیویگیشن، ریڈیو نیویگیشن، ریڈار نیویگیشن، وہ بھی تو اسی کے حساب سے بنائے جاتے ہیں۔ گھڑی جو ہے وہ بھی اسی کے حساب سے ہے۔ منتھ جو ہے وہ بھی اسی کے حساب سے ہے۔ ڈیز جو ہے وہ بھی اسی کے حساب سے ہے، اور جو سال ہے وہ بھی اسی کے حساب سے ہے، چاہے اس کو شمسی ایئر کہتے ہیں، چاہے قمری ایئر کہتے ہیں، چاہے وہ سورج کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، سن کے ساتھ منسوب کر کے اس کو سن کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ سورج کا سال ہے، اور اس کو چاند کا سال ہے، قمری سال ہے۔ تو یہ سارے تو اسی سے، یہی سے تو بنیاد اس کی بنی ہے۔ اور اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ جب 20ویں صدی کے اندر امریکہ کے اندر ایونجلا ایڈم نے اس کو پروموٹ کیا، تو اس نے اخبارات کے اندر اس کے اشتہار بنا کے دیے کہ جو یہ سٹار جو ہیں یہ آپ کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو اس سے یہ سٹوری جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور آج ہم ان برجوں کے اوپر ایمان رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برج میرا ہے، میرا دسمبر میں جو میری پیدائش ہوئی ہے تو میرا برج یہ ہے، میرا برج ایریس ہے، ٹائٹرس ہے، میرا برج جمنائی ہے، میرا برج کینسر ہے، میرا برج ورگو ہے۔ طرح طرح کے 12 برج ہے، 12 مہینے سے جتنے 12 ان پورے سال میں ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے میرا جو دے ہے اس کے حساب سے، پھر اس کے حساب سے لوگ آج کیا کرتے ہیں۔ اس کی جو نیگیٹو میں چیزیں بتا رہا ہوں، پازیٹیو میں نے بتائیں کہ یہ بنایا گیا، اب اس کی نیگیٹو چیزیں بتا رہا ہوں میں۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اس سے اس زمانہ میں بھی، بعد میں اس زمانہ میں نے آپ کو بتایا جیسے ہندو ہیں، ہندو شاستروں کے اندر جنتریاں بھی تیار کی گئی ہیں، اسی بنیاد پر جنتریاں تیار کی گئیں، اسی علم کو سامنے رکھ کے جنتریاں تیار کی گئی، اسی علم کو سامنے رکھ کے کیلنڈر تیار کیے گئے، اسی علم کو سامنے رکھ کے ڈیٹس رکھی گئی، اسی علم کو سامنے رکھ کے منتھس رکھے گئے۔ تو یہ سارا علم جو ہے یہ انسان کی زندگی پر اثر کرتا ہے۔ تو آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ایسا میگزین ہے جس کی شان کے اندر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا، آج کا ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا۔ اور میری بیٹیاں جو ہے نا بڑی شوقین ہیں، کہیں میرے بیٹے بڑے شوقین ہیں، کہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں جناب اور پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیاؤ جی میگزین۔ مجھے یاد ہے کہ جب ابھی یہ الیکٹرانک میڈیا کا اتنا زیادہ دور نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا بہت زیادہ دور تھا، سو پرنٹ میڈیا کے اندر اخبار کا وہ ٹوٹا جو ہے نا، وہ ٹکڑا جو ہے وہ پورے محلے چ گھومتا ہوتا سی۔ اب بھی سٹار پڑھی انہیں، اب بھی خوش ہوئی انہیں، میرا دن انج گزرے گا، میرا دن انج گزرے گا، میرا اس کو میرے اوپر۔ اور پھر اس کا جو دوسرا اثر ہے وہ ہے کہ حکومتوں کے اوپر کیا اس کا اثر ہوگا۔ تو جو یہ نجوم والے تھے وہ پیشن گوئیاں کرتے تھے کہ جی اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہو جائے گا، اور پھر اس کا اکانومی کے اوپر کیا اثر ہوگا، اس کا سیاست کے اوپر کیا اثر ہوگا، آئندہ دنوں میں کیا کیا ہوگا۔ سو یہ ان ستاروں کے برجوں کے اندر جا کر دیکھتے تھے، اور اس بندے کا دن، مہینہ، سال سارا کچھ نکال کے زائچہ اسے کہتے ہیں زائچہ نکالتے تھے۔ اگر آپ انڈیا سے ہیں، اور انڈیا والوں کے لیے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، لکھنؤ کے انڈیا والوں سے میں ایک بات کرنے لگا، انڈیا پنجاب کے اندر ایک بڑی کتاب مشہور ہے، پنڈت گردھاری لال کی کتاب بڑی مشہور ہے، اور اس کو کہتے ہیں لال کتاب، اس کو کہتے ہیں لال کتاب۔ گندھاری لال نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہی لال کتاب ہے۔ اور لال کتاب کے اندر اس نے جو ہے وہ علم نجوم کو لکھا ہے، اور اس کے اندر یہ پامسٹری جو ہے کہ آپ کی لکیریں جو ہے وہ کیا کہتی ہیں، اور لکیروں کا علم، پامسٹری کا علم، اور یہ سارے علوم ڈال کے کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کے سٹار کا یا ستارے کا، جو غلط علام میں نے کہا ہے، آپ کے سٹار کا، آپ کی لکیروں کے مطابق، اور پھر جیسے میں نے یہ انگوٹھی پہنی ہے، اور انگوٹھی کے اندر یہ پتھر ہے،
मुझे नहीं पता ये कौन सा है, ये पत्थर मैंने पहना है, तो ये पत्थर का को भी उसी स्टार के साथ मंसूब करके इससे फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर आपका। तो इसको हम जब फ्यूचर की पेशन गोइयां की जाती है, तुक्के लाते हैं, एवं एवं लग गया नहीं लगा तो ना सही, तो नाल तोता बिठा लेंगे ने। आपने देखा होगा कि बहुत से फुटपाथ्स के ऊपर तोते भी बैठे होते हैं, नजूमी भी बैठे होते हैं, जंतरियां भी पड़ी होती हैं, और एक तोते ना चल भाई यदि किस्मत कड, वो तोता जाता है नहीं चुंझ मारता है, जाकर उठा के ले आता है, और अच्छा जी जैचा निकला है। फिर एडे एडे उल्लू भाई सारा दिन तू खे अपने सिर च पवा रहे हैं, मिट्टी तेरे सारा दिन सिर च पई है, ते तू लोगों की किस्मत दसना फिरना, तेरा इंज हो जाएगा, तेरा इंज हो जाएगा, अपना बेड़ा गर्क करा के सारा दिन फुटपाथां दे उत्ते खे खा रहे हैं, ते लोकां नूं दसना तुसीं महलां च पवोगे, आप क्यों नहीं जानदा। ये ओहली गल ही होई ना कि बंदे एक ने जनाब एक तरबूज लिया, तरबूज लैके उन्हें तरबूज खोलिया ते विचों निकल आया जिन आंदा हो क्या हुक्म है मेरे आका। वो बंदा आंदा वाह जी वाह, बड़ी गल हो गई। उन्हें आखिया जी गल ये मैनू एक घर चाहिए, तो मैनू घर दे दे। जिन नूं आखिया मैनू एक घर दे दे, अगो जिन पता की जवाब दिता, जिन जवाब दिता जे सुन मेरी गल, जे मैं तेनू घर देता तो मैं आप दुआने च रहना सी, मैं आप तरबूज च रहना सी। सो मतलब ये है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस इल्म की शक्ल बिगाड़ के रख दी, इसको जादू के साथ, मंत्र के साथ, और पता नहीं केड़े केड़े टेवे ला ला के, पता नहीं क्या इसकी शक्ल ऐसी बिगाड़ के रख दी है कि समझ से बाहर है। आज आप देख ले टीवी के ऊपर लोग बैठे होते हैं, अच्छा जी टेलीफोन आया, यार जी मेरा जी ये स्टार है जी, मेरा ये महीना है जी, मेरा ये डेट है, एवं टुचू लालू करो दस होंगे ने। क्या है ये? फ्यूचर। स्केयर्ड है हम फ्यूचर की बाबत, और फिर हम घुसते हैं इन अलूम की बाबत, और ये कदीम जमाने की बात है। आइए बाइबल मुकद्दस में से मैं आपकी मदद करना चाहूंगा आज फिर खुदा का कलाम क्या कहता है, क्या खुदा का कलाम इनकी बाबत कहता है। यिर्मयाह की किताब मेरे साथ निकालिए, अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज मेरे साथ यिर्मयाह की किताब निकाल लीजिए, द बुक ऑफ यिर्मयाह, और उसका चैप्टर मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं 10, चैप्टर 10 वर्स 2 है। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 2, यहां पर यूं लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है, अगर तुम दीगर अक़वाम की रवश ना सीखो और आसमानी अलामात से हरासा ना हो, अगरचे दिगर अक़वाम उनसे हरासा होती है, दूजे लोग की एवं डर जाते हैं। दिगर अक़वाम आसमानी अलामात बुर्जों से हरासा होते हैं। हरासा होने का मतलब है स्केर्ड हो जाना, परेशान हो जाना, एवं फ्यूचर बारे परेशान, थोड़ा जा कारोबार च नुकसान हो जाना, बंदा आंदा को टेवा ही लवा लो यार, परेशान हो जाते हैं। नजूमी को टोर जो जी मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाए, सियासतदान एवं टेवे लवाते फिरते हैं, अच्छा जी मैं किन्ने को वोट ले लाऊंगा। ये सारे जो है, जो लोग आज जो प्रॉब्लम है ना, वो है फ्यूचर का प्रॉब्लम, फ्यूचर का। और फ्यूचर को जो है, हम कोई पत्थर को अपना पहन लेता है। ये मैं आपको बताता चलो, मैं जो पत्थर पहने ना, मुझे याद है कि मेरे एक चर्च के एल्डर थे, उनका नाम मैं बड़े नहायत अदब से लूंगा, मेरे बुजुर्ग एल्डर वजीर साहब एक ऐसी शख्सियत थे, मैं आज उनका जिक्र कर रहा हूँ इसलिए कि वो एक ऐसी शख्सियत थे, जब मैं फर्स्ट टाइम लाहौर के अंदर गया ना, पहला शख्स था, मैं और मेरी मिसेस ने इंजील सुनाना शुरू किया, और वो पहला हमारा मेंबर था दोनों का, जिसने हमें कबूल किया और अपने घर में उतारा। तो एक दिन वो मेरे लिए ये अंगूठी ले आया, ये मैं इसलिए उतारता नहीं हूँ, इससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरे किसी स्टार के साथ। तो मैं ये अंगूठी वो मेरे लिए ले आया, मैंने कहा जी, ऐसे मुझे उसने पकड़ाई, मैंने उठा के फेंक दी, मैंने कहा जी है कि ले आए मेरे लिए। हाँ, मैंने आता पादरी साहब, मैंने कहा मैंने नहीं कभी पहनी, कहता पादरी साहब, और यकीन जाने ये अंगूठी पता कहाँ के फेंक दी, एक फट्टा था, और अब पंजाब से जो लोग हैं, जो पाकिस्तान से इंडिया से लोग हैं, गोश्त कर रहा था कसाई, और उसके कसाई के फट्टे के नीचे ये अंगूठी फेंक दी। मैंने कहा मैं नहीं पाता है दाने दुने, मैं नहीं बिलीव करता। वो कहता है ये सोने की अंगूठी आपके लिए गिफ्ट के तौर पर मैं
लेकर आया हूँ, और ये मैंने मंगवाई है, इंग्लैंड से मंगवाई है, ये स्पेशल आपके लिए मंगवाई है मैंने, तो मेरे अजीज से। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने इसलिए इस अंगूठी को पहना है। और मैं उसी वक्त एक नौजवान ने उसको नीचे से घुस के उठाया और मुझे दी, और उनकी निशानी के तौर पर ये मैंने रखी हुई है। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो कई मरतबा ये होगा कि मैं जब कलाम सुना रहा हूँ ना, तो एवी को कब बैग टेबल आते फिरोगे, आप पादरी साहब ने कोई नागा पाया असर। हाँ, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये जो लोग हैं ना, ये नजूम के जो लोग हैं, एवी अपने, मैं एवी पाई हुई है, मैंने तो अच्छी लगती है, मैं इसलिए पाई हुई है। एनीवे, इसका कोई मेरी जात से ताल्लुक नहीं है, मेरे कोई स्टार ना ताल्लुक नहीं है, मेरे कोई किसी के साथ ताल्लुक नहीं है। क्योंकि कल तुसा गल करनी, मैं तो अज ही पहला दसदा, ऐत ही मैं कसाइयां दे फट्टे दे थल्लों चुकी हुई जे, क्योंकि मैं सुट दी सी। सो एनीवे, अब बात मैं कर रहा हूं कि हकीकत के अंदर लोग स्केर्ड है फ्यूचर पर, फ्यूचर की बाबत परेशान है कि कल मेरा क्या गुजरेगा, कल क्या होगा, और इसलिए वो नजूमियों के पास जाते हैं और टीवी के ऊपर आप देख ले आए दिन कोई ना कोई आके पेशन गोइयां करेगा, ये हो गया ये हो गया। सो बाइबल क्या कहती है, चले आए बाइबल मुकद्दस की बाबत लिखा है कि दिगर अक़वाम की तरह आपने इस फल्कियात की बाबत हरासा नहीं होना। फिर 48 चैप्टर है इज़ाया चैप्टर 47, इज़ाया चैप्टर 47, यसाया की किताब 47वां बाब, इज़ाया चैप्टर 47 वर्स 13 के अंदर से मैं आपके लिए 13वीं आयत से पढ़ने जा रहा हूं। यहां पर लिखा है, तू अपने मशवरतों की कसरत से थक गई, तू अपनी काउंसलिंग की वजह से टायर्ड है, थक गई है। अब इफलाक पेमा और मुंजिन और जो मापमा आइंदा हालात दरियाफ्त करते हैं उन्हें, और जो कुछ तुझ पर आने वाला है उससे तुझको बचा ले। खुदा कलाम करता है, ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है ना, ये जो पामस्ट अपने अंदर बने हुए हैं, ये जो बताते हैं तुम्हारे साथ कल क्या होगा, तो महीना के जो गुजरेगा, तो हफ्ता के जो गुजरेगा, तो दिन के जो गुजरेगा, एवं तुझी खाम ख्यालियां च पहले। तो खुदावंद कहता है जो इफलाक की पमाइश करते हैं वो तुम्हें बचा के दिखाए, जो तुम्हारा हफ्ता बताते हैं वो तुम्हें बचा के दिखाए, जो तुम्हारा महीना बताते हैं, महीना बता के ये तुम्हारा स्टार है, वो तुम्हें बचा के दिखाए। सो जो इल्मे फल्कियात है, इसकी शक्ल बिगाड़ दी गई है। उस जमाना के अंदर भी इसको जादू के अंदर ले आए थे, इसको जादू की एक बाकायदा इल्मे जाफर के अंदर ले आए थे, रामिल के अंदर ले आए थे, साखिर के अंदर ले आए थे। सो इसको जादू के साथ मंसूब किया, हालांकि इसका आगाज जादू से तो नहीं है। अगर आप जाकर, मैंने फिर बताया, ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर जाएं, गूगल के ऊपर जाएं, गूगल के ऊपर रिसर्च करें, जो मैंने आपको बताया है, ये बुर्ज जो है, ये मनकतुल बरूज जो है, आप उर्दू जुबान में गूगल के अंदर मनकतुल बरूज ही लिख के देख लें, आपको सारी स्टोरी मिल जाएगी जिसका तज़किरा मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं। तो ये सारा खुदा ने मना फरमाया। लेकिन यहूदी क्या करते थे, यहूदियों के अंदर भी ये चीज पाई जाती थी। और ये मैं आज अब आपको जो बात बताने रहा हूं, यहूदी ये समझते थे कई मर्तबा कि इनका असर हम पर होता है। ये स्टार्स का जो असर है ना, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ पर भी होता है। और ये जो बुर्ज है, ये आज मेरा आज ग्रहण लगा हुआ है, फलां बुर्ज जो है जाएगा। आप देख लीजिए इंडिया के अंदर हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनकी जिंदगियों के अंदर आप देख ले, वो बुर्जों पर ईमान रखते हैं, वो स्टार्स पर ईमान रखते हैं, वो कुंडलियों पर ईमान रखते हैं। जन्म कुंडली जो है, जन्म कुंडली भी तो इसी से बनाई जाती है, जन्म कुंडली भी तो स्टार्स के साथ ही बनाई जाती है। और फिर उसकी जो पेशन गोइयां है, प्रोसेस की जाती है। प्रोसेस क्या की जाती है कि अच्छा जी, इसकी कुंडली मिल जाएगी और इसका ग्रहण है, इसके ऊपर शराब है, इसके ऊपर लानत है, तो इसको इन मंत्रों से इसको दूर किया जाएगा। लेकिन आगाज में तो ये नहीं था, शुरू में तो मंत्रों का ताल्लुक ही नहीं था इसके साथ। शुरू में तो इसके साथ कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं था, कोई मंत्रों का ताल्लुक नहीं था, कोई पढ़ाई का ताल्लुक नहीं था। बाद में इसको ऐड किया गया, जो आज इंडिया के अंदर भी प्रैक्टिस की जा रही है, आज पाकिस्तान के अंदर भी प्रैक्टिस की जा रही है, और आज दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक के अंदर इसकी प्रैक्टिस की जा रही है। और इसकी शक्ल बगाड़ के जादूगरी के अंदर डाल दिया गया। लेकिन आगाज के अंदर ऐसा नहीं था। सिर्फ आगाज के अंदर पेशन गोइयां की जाती थी। पेशन गोइयां क्या होती थी, अच्छा जी ये बादशाही ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं। अगर आज आप मेरे साथ
जैसे हबाकुक की किताब के से भी एक रेफरेंस मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हबाकुक की किताब और उसका चैप्टर है 3 और वहां पर लिखा है, तेरे उड़ने वाले तीरों की रोशनी से और तेरे चमकीले भाले की झलक से आफताब और महताब अपने बुर्जों में ठहर गए। सो यहाँ भी आपको बुर्जों का जिक्र मिलेगा। सो इसका मतलब है कि जो जुडाइज्म था, जो यहूदी थे, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये समझना शुरू हो गए थे दिगर अक़वाम से कि जो स्टार्स हैं हमारी जिंदगी के अंदर अमल करते हैं, क्योंकि झूठ इतना कम्युनिकेट किया जाता है कि लोग ऐसे ही समझ जाते हैं। लेकिन याद करें उस टाइम को, ये सितारों के इल्म की बात जब मैं कर रहा हूं ना, अब उस टाइम को याद करें कि जब मजूसी खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि पूरब में हमने इसका सितारा देखा है और हम उसे सजदा करने आए हैं। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ कहां है, हम उसे सजदा करने आए हैं। सो इसका मतलब है कि इल्म फल्कियात या इल्म नजूम जो मजूसी थे, उन्होंने आकर खुदावंद यीशु मसीह को आकर सिजदा किया और सितारों के इल्म ने उन्हें बताया। सो ये जो सितारे हैं ये मौसम तो बता देते हैं, लेकिन आज जो आखिरी बात है, लास्ट बात है, अगला दिल थाम के बैठिएगा जो मैं अब फिक्रे बोलने लगा। मुश्किल जरूर होगी लेकिन रिसर्च करिएगा। मैं फिर आपसे कह रहा ना कहूं, क्योंकि आजकल बड़े लोग हैं जो मेरे छोटे छोटे क्लिप उठा के पता नहीं की बना छड़ दे रहे हैं। फिर कह रहा हूं उसको कॉन्टेक्चुअली इसको देखते नहीं है, कॉन्टेक्स्ट उसका देखते नहीं है, पीछे मैं क्या कह रहा हूं अगली गल चुक लेते रहे। अब मैं जो एक बात बताने लगा हूं बाइबल मुकद्दस में, फिर मैं फिक्रा दोहरा के आराम से बोलने लगा हूं। बाइबल मुकद्दस में मैंने पूरी इसकी स्टडी की, देखा, जांचा। इल्मे नजूम जो है इसकी मुझे कहीं मुखालिफत नजर नहीं आई। हां, इसकी बाबत यह जरूर है कि जो इनके ऊपर इन्हिसार करते हैं, और इन्हिसार क्या करते हैं कि कल मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, उसके लिए खुदा ने कहा है ना, फ्यूचर में देखना, फ्यूचर मेरे हाथ में है। हम अपना फ्यूचर सितारों में ढूंढते हैं, हम अपना फ्यूचर स्टार्स के अंदर ढूंढते हैं। कल क्या होगा, याद करें वाकया, दोबारा दानियल की किताब के अंदर जाएंगे। दानियल की किताब के अंदर जब जाए, दानियल ने 10 दर्जे बुलंद मर्तबा पाया इल्म नजूम में। जो नजूम का इल्म है ना, जो स्टार्स का इल्म है, जो बुर्जों का इल्म है, जिसे मनकतुल बरूज बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, बिन आतुल नाश लिखा हुआ है, उक्द सुरैया लिखा हुआ है, जोब की किताब के अंदर जिसकी डिटेल लिखी हुई है, इसकी बाबत दानियल को 10 दर्जे बुलंद पाया। और फिर जब किंग ने, बादशाह नबूकदनेस्सर ने ड्रीम देखी ना, तो उसने ड्रीम का जो ड्रीम थी, उस जो ख्वाब देखा, रोया देखी, ख्वाब देखा, दानियल से कहा था, दानियल तू बता। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है दानियल ने उसका फ्यूचर बताया, और फिर उसने कहा सारे नजूमी मार दो, झूठे ने। इसका मतलब है दानियल ने जब फ्यूचर बताया कि कल क्या होगा, और उसने जो लफ्ज वहां पर लिखे है ना, दानियल नबी ने कहा, खुदा के खादम ने कहा कि खुदा ने मुझ पर यह खोला है, आसमान पर एक खुदा है जो भेदों को जानता है, उसके अलावा कल को कोई नहीं जानता। झूठ है बाकी सारा, बुतलान है बाकी सारा। सितारों का इल्म रखना अच्छी बात है, लेकिन उस पर तवक्कुल करना यह बुरी बात है, यह बाइबल नहीं सिखाती। दानियल ने कहा आसमान पर एक खुदा है, नजूम का इल्म मेरे पास है, मैं 10 दर्जे तेरे नजूमियों से बड़ा हूं, लेकिन फेल है ये इल्म, फेल है ये इल्म। जहां तक मौसम का ताल्लुक है, जहां तक पेशनगोइयां को ताल्लुक है, जहां तक तू ये बताता है कि ये सल्तनतों के अंदर क्या होगा, वो ठीक है। लेकिन जब आप खुदा के साथ उसका मुकाबिला करते हैं कि खुदा ही नहीं है कोई, यही सब कुछ है, डिपेंड कर। अभी याद करें आप, ये तो सारी चीजें बनाई खुदा ने हैं। खुदा ने आसमान पर 2 नैयर बनाए, नैयर अकबर और नैयर असगर, सूरज और चांद, सन एंड मून एंड देन स्टार खुदा ने बनाए, सितारे खुदा ने बनाए।
تو یہ تو اس کی مخلوق ہے, خلق کیے ہوئے ہیں, چیزیں بنائی گئی ہیں. خالق وہ ہے, کریٹر ہے وہ, یہ کریشن ہے. اینڈ دا ٹائم ول کم, بہت جلد, نہ سورج رہے گا, نہ چاند رہے گا, نہ ستارے رہیں گے, نہ سیارے رہیں گے. رہے گا نام سدھاتی کرم سیدھا رہے گا جب تک سورج رہے گا. کوئی چاند نہیں رہے گا, کوئی سورج نہیں رہے گا, کوئی ستارہ نہیں رہے گا, صرف یسوع مسیح ناصری رہے گا اور اس کا نام رہے گا. اس لیے دانیل نے کہا تھا آسمان پر ایک خدا ہے جس نے مجھ پر یہ بھید کھولا ہے. میں اسٹرالوجی پر نہیں جا رہا, میں علم نجوم پر نہیں جا رہا. علم مجھے ضرور آتا ہے, وہ ستاروں کا علم مجھے پتا ہے. یہ برج فلاں کے اندر یہ کب جائے گا, 30 اینگل کے مطابق, یہ کون سے ڈگری کے مطابق, جو 30 ڈگری ہے, کب اس کے اندر یہ ان ستاروں کے اندر سے, اس کے مدار کے اندر سے سورج گزرے گا, کتنے دن رہے گا, کتنے گھنٹے رہے گا, اور پھر آگے آہستہ آہستہ چلتا 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 360 جو ہے اس ڈگری کو کمپلیٹ کر کے کیسے سارو. یہ سارا علم مجھے ہے. میں 10 درجے تیرے بندوں سے زیادہ ماہر ہوں علم نجوم میں, لیکن میرا خدا بھیدوں کا کھولنے والا ہے. تو نے بلائے نجومی, بلائے میرے سامنے, اور تو نے ان نجومیوں سے کہا نجومیوں بتاؤ میں نے جو خواب دیکھا ہے. تو کسی نجومی نے بتایا نہیں بتایا. انہیں کہا تکا لاؤ گے تو جانوں مار دوں گا. جو تو نجومیوں نے کہہ رہا تکا لاؤ گے تو جانوں مر جاؤ گے. پھر لتاں بھی کمدیاں نے. اج تھی کہ نجومی نے کہو نا ادھر آ پائیا ٹی وی دے بہ دس مینوں کل کی ہوئے گا میرے نال, تے جے اگر وہ نہ ہویا تیریاں لتاں کٹ دینیاں نے, تینوں جانوں مار, تو تے تیرا کنبا, بائبل میں لکھا تو اور تیرا خاندان ختم اگر غلط ہوا تو. انہاں کہا لو جی ہینڈز اپ, ساڈا علم آ پیا جے, آ پیا جے ساڈا علم, سانوں نہیں آندی نجوم. ماہر نجوم جنہوں نے نجوم کا علم ایجاد کیا, جب بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ پھر مجھے میں نے کیا خواب دیکھا ہے, اب ہوں لاؤ نا تکے, کنے کو لاندے ہو نا, سوری, کیونکہ وجہ اگر ایک بھی تکا غلط نکلیا ساڈا بھی سر گیا, ساڈے بیویاں دا بھی, بچیاں دا بھی, تے ساڈی ساری نسل دا سر کٹیا جانا ہے اگر ایک تکا غلط نکل آیا. اس لیے یہ تکے بند کرنا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کل آپ کا کیا گزرے گا, آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا, آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا, سارے تکے نے. اور انہوں نے کہو جنہیں رسالے لکھتے نہ پتہ پرانے پٹھے سے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک رسالے کا میں بھی کسی وقت میں ایڈیٹر رہا, ایڈیٹر نہیں سوری نام کا نہیں تھا, لیکن میں ایڈیٹر کی ہیلپ کرتا تھا. سوری جو فکرہ مجھ سے غلط نکل گیا میری زبان سے, میں ایک ایڈیٹر کی ہیلپ کرتا تھا. ایڈیٹر صاحب تو کام نہیں کرتے تھے, سارا کام میں ہی کرتا تھا اور نام ایڈیٹر صاحب کا چلتا تھا. تو میں ایک دن اسے فون کر کے کہتا ہوں پاجی کو آرٹیکل ہی کوئی نہیں آیا, پرانا ہی لا دے یار چوکے ہو. تو یہ حال کرتے ہیں اور پرانا چوک کے لا چڑھتے ہیں. تو تھی آتے میرا ہفتہ جی گزرنا, میرا ہفتہ جی گزرنا. میں تو خود اس کام کو کر کے دیکھا, میں نے ایڈیٹنگ کی. جب ایڈیٹنگ کے کوئی آرٹیکل ہی نہیں آ رہا پورے ہفتے پورے مہینے چ, تو میں پاجی کوئی آرٹیکل ہی کسی نہیں بھیجا. تو میرے آدھے جو پرانے پے نے 2-4 سال پرانے 10 سال پرانے, وہ پرانے رسالے پڑھ انہوں نے کو چوک کے لا دے. تو میں کہا جی آ لو جی, اور رسالہ تیار ہو گیا جی, فریش آرٹیکل آ گئے. اے حالات کر دے جا, یہ حالات ہوتے ہیں. میں تابع دار تھا کیونکہ میں وہاں پہ امپلائی تھا, اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل اس میں چھاپ دو, تو میں نے اس کو لگا دیا. یہاں بھی یہی حال ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جی آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا, تو اسی بڑے خوش ہو جانے ہیں ٹی ویاں تے بہ کے اور رسالے پڑھ کے اخباراں پڑھ کے بڑا راضی ہو جانے ہیں, او میرا ہفتہ ایسے گزرا, میرا برج یہ ہے. علم برجوں کا ٹھیک ہے, لیکن اس کا امپیکٹ غلط ہے. اس کو جادو کے اندر شامل کرنا, رامل کے اندر شامل کرنا, ساخر کے اندر شامل کرنا, جوتش کے اندر شامل کرنا, اور پھر اس کو جعفر کے اندر شامل کرنا, علم جعفر کے اندر. آئندہ لیکچرز میں بتاؤں گا, میں شامل کرنا غلط ہے. اس لیے دانیل نے کہا تھا, دانیل نبی نے کہا تھا آسمان پر ایک خدا ہے جو بھیدوں کو جانتا ہے. علم نجوم فیل, علم نجوم فیل. جب پیشن گوئیوں کا تعلق آئے گا, جب آپ کی ذات کا تعلق آئے گا, جب آپ کے فیوچر کا تعلق آئے گا, جب آپ کی قسمت کا, جس کو ہم کہتے ہیں نا آپ کی قسمت کا تعلق آئے گا. چلو ایک لفظ بھی میں کبھی استعمال نہیں کیتا, لیکن آج کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ کی قسمت کا تعلق آئے گا تو یہ ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ تعلق ہے, ستاروں کے ساتھ نہیں, ستاروں کے ساتھ نہیں.
आपकी ज़ात, और ना ये पत्थर के साथ ताल्लुक है आपका कि ये पत्थर भी पहन लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सब खुदा के हाथ में है। दानियल के बाद आखिरी फिक्रा, नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहा, अब मैं जान गया कि आसमान पर एक खुदा है। आइडल वर्शिपर है ये। इसने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया नजूमियों का, इसने नजूमियों का हाकम बनाया है, इसने नजूम के अलूम के ऊपर जो आलिम मुकर्रर किया, दानियल, जिसका 10 दर्जे नॉलेज तमाम नजूमियों से, राइज टाइम के वक्त तमाम नजूमियों से, बाबल के तमाम नजूमियों से बड़ा आलम, उसको बनाया। तो अब उसके फिक्रे सुनिए जरा, फिक्रे सुनिए जरा। दिल करता है उसके हाथ से उंगलू जा के क्या फिक्रा बोला उसने कहा, अब मैं जान गया कि आसमान पर एक खुदा है जो भेदों को खोल देता है। बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर फल्कियात का जिक्र है, मनकतुल बरूज का जिक्र है, उक्दे सुरैया का जिक्र है, बिन आतुल नाश का जिक्र है, जब्बार का जिक्र है, सितारों का जिक्र है, बुर्जों का जिक्र है, और फिर इनकी गर्दिश का जिक्र है, इनके मद्दारों का जिक्र है। उसकी वजह आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है, और सितारा सितारे के जलाल में फर्क है, इसलिए कि इनका खालिक, इनको कंट्रोल करने वाला यहोवा पाक खुदा जिंदा खुदा है, जिसने सितारों को अपने कंट्रोल के अंदर रखा है, और वो जब चाहता है, जिस समत चाहता है, उस समत वो चलते हैं। इसलिए कि उनका हाकम जो है, हाकमुल हाकमीन जो है, वो जिंदा खुदा है जो उनके ऊपर हुकूमत करता है। आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव की चौकी है। और ये सूरज, सितारे, सैयारे, एक टाइम आएगा जब मेरा आका, आपका आका रब्बना यीशु अल मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, चांद खत्म हो जाएगा, सूरज खत्म हो जाएगा, सितारे खत्म हो जाएंगे, सैयारे खत्म हो जाएंगे, इजराम फल्की खत्म हो जाएंगे, और वो सारे के सारे का खात्मा हो जाएगा, और आसमान को कंबल की तरह लपेट लिया जाएगा। आसमान भी खत्म हो जाएगा, जमीन भी खत्म हो जाएगी। फिर एक नया आसमान और नई जमीन होगी जिसमें खुदावंद यीशु मसीह होंगे, बर्रा आप होगा और हम उसके साथ होंगे। ये है हमारा फ्यूचर। जिन पर आप डिपेंड करते हैं, जिन स्टार्स पर आप डिपेंड करते हैं, खत्म हो जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे, खात्मा इनका हो जाएगा। अगर कोई रहेगा, सूरज खत्म हो जाएगा, चांद खत्म हो जाएगा, सितारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन रोशनी खत्म नहीं होगी। इसलिए कि मेरे आका रब्बाना यीशु अल मसीह का चेहरा मुबारक इतना नूरानी होगा कि नूर की जरूरत ही नहीं होगी, सितारों की जरूरत ही नहीं होगी, सैयारों की जरूरत ही नहीं होगी। सब कुछ खात्मा होगा, सब नया बनेगा, और खुदा का बेटा यीशु मसीह राज करेगा, और हम उसके साथ उसके लोग होंगे, और वो आप हमारे आंसू पोंछ डालेगा। फिर न मौत रहेगी, न मातम रहेगा, न आखो नाला। फ्यूचर है ये आपका, ये है फ्यूचर। दानियल को उस वक्त हाकम बनाया नजूमियों के ऊपर, और उसका इल्म आज दरियाफ्त हो चुका है। मजूसियों ने आके यीशु मसीह को सजदा किया, एस्ट्रोलॉजर्स ने आके मसीह को सजदा किया कि ये हकीकी सितारा है। उन्हें पता था कि ये है यीशु मसीह नासरी। सो आज मैं उन लोगों को दावत देता हूं जो लोग इस तरह का ईमान रखते हैं सितारों पर, सैयारों पर, उनकी गर्दिशों पर, उनके बुर्जों पर, और अपनी ज़ात को ये समझते हैं कि इनका असर ही मुझे बचा सकता है, छुड़ा सकता है, बहाल कर सकता है, एम्पावर कर सकता है, और मुझे डेवलप कर सकता है। वो इससे बाहर आए और अपना तवक्कल जिंदा खुदा पर, जिस तरह नबूकदनेस्सर ने कहा था, अब मैं जान गया, अब मैं जान गया, मैं जान गया, क्योंकि मैं नजूमियों का भी सरदार रहा, मेरे पास नजूम का इल्म है, लेकिन अब मैं जान गया कि आसमान पर एक खुदा है जो भेद की बातें जानता है। सिर्फ खुदा आपका फ्यूचर जानता है, सिर्फ खुदा आपको जानता है, और आपका फ्यूचर ये बाइबल बताती है। वो फ्यूचर ये है कि आप यीशु मसीह के साथ होंगे।
फ्यूचर आपका ये है कि सूरज चांद सितारे खत्म हो गए और मेरे आका के चेहरे का जलाल आपकी जिंदगियों को मुनव्वर करेगा। अगर आज तक आपने अपने फ्यूचर की बाबत स्केर्ड है, अपने फ्यूचर की बाबत परेशान है और अपने फ्यूचर की बाबत सोच रहे हैं और इन सितारों पर, इन स्टोन्स पर डिपेंड कर रहे हैं, तो बाहर निकलिए इन खाम ख्यालियों से और यीशु मसीह नासरी को अपना खुदा मानिए ताकि आप बरकत पाएं और आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। खुदावंद हम सबों को बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए और आप पर से बरकत ठहराए जाए। दानियल नबी की किताब के मुतालिया का ये सिलसिला जारी रहेगा। 17वीं एपिसोड कल ठीक 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, इंडियन टाइम के मुताबिक 9:30, मिडल ईस्ट का इवनिंग होगी और फिर कनाडा के टाइम के मुताबिक दोपहर 12 बजे दोबारा आपकी खिदमत में मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदावंद अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए। जिस काम में आप हाथ लगाएं खुदावंद उस काम में बरकत का हुक्म रखे और आप दुम नहीं सर ठहराए जाए। सरफराजी, कामरानी, बरकत हमेशा आप पर रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।